ये पता है वो कौन सी मूवी थी, वो एरिया भाई वाला कौन सा था? The next venture is Baba Vyas. Probably Social common in media. your generation because I'm not aware about. Gen Z. So guys, welcome to the Nancy Show. So let's have the most raw and unfiltered conversation. I don't want it to be like very formal, and we'll just keep it very raw and natural. I would have done 10x more if I would have been a software engineer. मैं टेक में जीरो हूँ। That I agree. He's literally zero in tech. जैसे मेरे को मेल भी चलाना नहीं आता, तो सब टीम के फोन में मेरा मेल भी लॉग इन है। बट इसका डिसएडवांटेज है कि मेरी पूरी लाइफ ओपन है। कुछ ट्रेडिंग नहीं तो वो कुछ ना कुछ तो उस पे ही चलता है। Maybe a DJ or something related to this. Someone cannot fix their own Wi-Fi. For me, comfort is everything. I am at a stage कि I don't want to push for anybody. मतलब बुरा तो लग ही रहा है ना। नहीं अब हमें तो एडजस्टमेंट है, हमने क्या करना, तो गाली देनी है। तो अपन थोड़ा 9 to 5 वाले में नहीं हो सकते भाई, सिंपल है, नींद भी पूरी करनी है। ये मूड बनाने वाला बंदा है ये। मैं कल रात को नहीं सोया और ये हमें गिल्ट में डाल देता है। मैं सुबह 7 बजे उठ जाता। तुम उठ के दिखाओ। 18 लाख की नहीं भी घड़ी पहनेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। पर दाल चावल सब्जी रोटी का अरेंजमेंट हमने कर लिया है। We all can retire right away right now without even thinking anything because इतना रेंट तो सबको आएगा ही। So guys, welcome to the Nancy Show. आज मैंने सोचा कि हम सब यहाँ पे साथ में हैं, so let's have the most raw and unfiltered conversation. I don't want it to be like very formal, and we'll just keep it very raw and natural. Considering that you guys all belong to the same industry, you all are traders, you are into crypto, you are a full-time trader, and all of you are into content creation as well, and you guys are pretty popular, same niche, of course. So I just want to ask you कि कभी ये सोचा है if you guys didn't become a content creator, या फिर अगर आप ट्रेडर नहीं होते तो आप क्या होते? आई एम श्योर बचपन में तो कभी नहीं सोचा होगा कि हम बड़े होके ट्रेडिंग करेंगे और वी गोइंग टू सम फाइनेंस नीश. सो वी विल गो वन बाय वन, मे बी वन ऑफ यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. We'll start with the older one. Prasad, you may speak now. प्रसाद इज द ओल्डेस्ट. हाँ सच बुड्ढा है। Like यहाँ पे तो ऐसा है. Also the experienced one too. And in both the niches. So yeah, definitely मुझे तो पता नहीं था कि I'll be a trader and stuff. Influencer तो कभी सोचा नहीं था. बिकॉज आप मुझे यही 5-6 साल पहले पूछते कि अगर इतने सालों के साथ मतलब इतने सारे लोगों के सामने बात कर सकते हो क्या, आई वुड हैव सेड नो। बिकॉज मतलब वो कॉन्फिडेंस कभी था ही नहीं, ना स्कूल में ना कॉलेजेस में, कभी ऐसा मैं आगे आया नहीं था। बट डेफिनेटली मुझे लगा कि जैसे जैसे ये फील्ड आते रहा, इट वॉज माई इंटरेस्ट, तो इतने सारे लोगों के साथ बात करना हुआ। बट इफ़ ट्रेडिंग वॉज नॉट द थिंग, आई थिंक आई वुड हैव बीन एनी एंटरप्रेन्योर थिंग, लाइक जो भी बिजनेस वाइज, बिकॉज आई हैव बीन इंस्पायर्ड विद माई डैड। यू स्टिल एन एंटरप्रेन्योर? Yeah, that's what I'm saying. Like कुछ ट्रेडिंग नहीं तो वो कुछ ना कुछ तो उस पे ही चलता है। Maybe a DJ or something related to this. DJ. Yeah, because that is my next interest. दिन चेक Exactly. अभी next skill में जो सीखने वाला that is gonna be DJ. I've already started it. बड़ा अच्छा है, कूल है। हाँ मतलब Cool. कुछ तो है ही, अभी audience है तो obviously अगर even if I play somewhere we can have a good audience anyway. Yeah, might suit his personality. Yeah. मुझे सोच रहा हूँ कि ऐसे something good, कोई नया skill आपको सीखते जाना पड़ेगा. Trading is done already. No, I think Yash would be a better DJ than all of you all. It suits his personality the most. I already play. So did you also think of becoming a DJ या फिर आपका कुछ plan था? I have always been into tech. मेरा बचपन का सपना था that I always wanted to be a software engineer, and I would have done 10x more if I would have been a software engineer. मुझे अभी भी लगता है ये चीज़. And still I am into tech. में इनको गुप्ता जी को पता है कि I keep on developing tech. मुझे पसंद है खुद टेक बनाना. I don't know anything. Thank God to ChatGPT and Claude. So I use it. But I think my end goal will still be the same thing. कि मुझे अच्छा एक प्रोडक्ट बनाना है. शायद वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो सकता है. But I'm more focused towards healthcare industry. हेल्थ केयर को लेके कोई प्रोडक्ट बनाना है और खुद डेवलप करना है. तो आई थिंक दैट इज समथिंग आई वुड बी डूइंग एंड आई कैन मेक at least 10x more than what I'm doing right now with trading. That's what I believe. I think now tech would suit more of his personality. मैं टेक में जीरो हूँ। मतलब मैं honest That I agree. He's literally zero in tech. So he keeps on calling कि भाई ये कैसे करना आता है, वो कैसे करना है. Instagram में ये भी होता है. Yesterday we were like uploading something and I told him कि मैं थोड़ा aesthetically लिख देती हूँ. वो थोड़ा बोरिंग तरीके से लिख रहे थे. He was like shocked to see कि ऐसा भी कर सकते हो क्या Instagram पे. उसने कोई साइज बड़ा नीचे किया, मैंने कहा यार ये सब भी होता है, बट मेरे को वो थोड़ा सा बोरिंग लगता था. मैंने कभी सीखने की कोशिश नहीं करी, बट somehow I managed कि मेरे आसपास ऐसे लोग हों जो करके उस चीज़ को दे दे. जैसे मेरे को मेल भी चलाना नहीं आता, तो सब टीम के फ़ोन में मेरा मेल भी लॉग्ड इन है. बट इस वजह से ना इसका डिसएडवांटेज है कि मेरी पूरी लाइफ ओपन है. ये हर बंदे के पास मेरी हर चीज़ का एक्सेस है. मतलब मेरे व्हाट्सएप से लेकर हर एक चीज़ का एक्सेस है, क्योंकि मैं टेलीग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया है, मतलब मैं कुछ भी चीज़, मैं अगर ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ तो मैं वो अकाउंट भी खुद लॉग इन नहीं कर सकता. तो
मतलब क्योंकि मैंने कभी सीखा ही नहीं, तो वो उस पर डिपेंडेंसी है। बट टेक में तो कुछ नहीं होता। बट मतलब मेरे को ये है कि इंस्टाग्राम आई एम फॉलोइंग, मतलब सोशल मीडिया पे मैंने ओला पेज बनाया था इन 2018 और मैंने उसमें बिजनेस करना शुरू कर दिया था। आई वाज सेलिंग शूज़ गाइस जो ट्रेडिंग वगैरह करते, तो मेरे को लगता है कि मैं कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे ही कर रहा होता, ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं होता, तो कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो। मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है और मैं हमेशा चाहता हूँ कि ट्रैवलिंग का कंटेंट डालूं। बट लोग हमें मतलब वो कंटेंट, मतलब मेरे को लगता नहीं कि मैं बहुत बोल्डली उसको मतलब डाल पाता एक्सप्रेस हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होता हूँ। मेरे को चाहिए कि अगर मैं खड़ा हूँ, कुछ शूट करना है, जैसे जॉर्डन है तो मैं शूट करना तो अभी करना शुरू कर दे, 1 मिनट में कर रहा है तो वो थोड़ा सा मैं लैग कर देता हूँ। बट मेरा अभी भी बहुत मन है कि मैं ट्रैवल के ऊपर कुछ वीडियोस बना के, मतलब सोशल मीडिया पे कुछ करो, इससे So बाहर you नहीं always knew कि मेरे को कंटेंट ही क्रिएट हाँ, करना मैंने है। फर्स्ट काम ही सोशल मीडिया से ही शुरू किया था 2018 में। मैंने फर्स्ट पेज बनाया हम्म। और उसमें मैंने बेचना ही शुरू किया था, जूते बेचता था, टाइल्स बेचता था, उधर से उठाया किसी वो वेंडर से। एक्सॉगन वाले टाइस क्या जो ऐसे साइन हाँ वाले हाँ आते थे? हाँ हाँ, हाँ ये वो बेचा। आज भी पेजेस है ये मेरे कौन को। सी टाई होती है? अरे आई थिंक बीच में एक बहुत ट्रेंड था, famous आई थी, थिंक golden और 7 8 silver। हाँ हाँ, गोल्डन वो और सिल्वर बेची है वाले थे। मैंने खुद बना बना के बेचे। तो बट मैंने फर्स्ट बिजनेस इधर शुरू किया, तो ये नहीं होता तो कुछ ना कुछ probably सोशल common in मीडिया your generation because I'm not aware about this. Gen Zs. मतलब कुल मिला के धंधा होता मेन मतलब बिजनेस। सोशल मीडिया पे होता। What about you, sir? यार मेरा एकदम ही ये हो रहा है, मैं गुंडा गुंडा स्पिरिचुअल होता। ऑरेटर होता अगर कुछ क्या और होता? ना होता Oh, स्पिरिचुअल कोई नहीं स्पिरिचुअल सुने। ऑडिटर ये लाइक क्या होता व्हाट है? एग्जैक्टली लाइक? मतलब कथावाचक Interesting. टाइप हाँ, नहीं अच्छा। पता। वैसी चीज कि मैं वैसे बचपन से आवाज तो अच्छा वैसे कर सकता है। मतलब मैं तो बचपन next से ही goal- वैसे ही था क्योंकि मेरा And he's a स्टेज good का singer as well. स्टेज का Is जो it? फेयर था ना वो शायद मैं जब क्लास फर्स्ट में था तब से मेरा नहीं है। तो स्टेज पे भजन गाना या कथाएं करना या प्रवचन देना, ये सारी चीजें बचपन से मेरी लाइफ में आप रही पैसा है। बनाते सेठ तो। तो मतलब वो तो उतना ही बनाते नहीं, मैं जितना शायद विश्वास मैं वो मेरे को अरे वो पता है कि आपने इसका देखा है? फैमिली बिजनेस भी रहा है। वो मतलब फैमिली Business? बिजनेस नहीं, मतलब इसकी मतलब ठीक है फैमिली में फैमिली रहा का है, फैमिली में रहा है। Because बट इसकी पर्सनालिटी से लगता नहीं है कि ये पता है वो कौन सी मूवी थी, वो एरिया भाई वो वाला कौन सा था। तो वो तो नेक्स्ट वेंचर इज बाबा व्यास। धीरे धीरे बदल गया वो तो अब अपना जो लुक बट अभी उस साइड को कोई टच है? हाँ टच तो है अभी भी। कथावाचक तो कई देखो कथा भजन मैं पढ़ते अभी हो? भी सुनता हूँ गाता हूँ और कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं से कुछ लाइंस पिक करी तो मैं उनसे कुछ अपना बना के लिखता हूँ, वो मैं अभी भी करता हूँ। और पूजा पाठ ये सारी चीजें मेरे को ऐसे आती है। he sings only one line. सादगी तो मन वो तो गाना है मतलब गा दैट इज माय फेवरेट इतनी सॉन्ग। नहीं गाते गा के हैं। दिखा। अभी ऐसे गाना नहीं है ना। लगाए माइक तरफ दबा है। बट हाँ ये होता कि या तो मैं भजन वाली लाइन में होता या कथावाचक वाली लाइन में एंजॉय होता। करते हो उसको। हाँ हाँ बहुत। मतलब मैं आज भी अगर बैठता हूँ साधना में तो मेरे को बहुत अच्छे से दिल से करता हूँ मैं। लगता नहीं है उसको देख के, एक बार सेशन लेना पड़ेगा। इसको देख के नहीं लगता, इसको भी नहीं लगता ये करता। ये क्या है कि मतलब आप लोगों ने जो भी बोला उसमें से मतलब he zero in tech but he wants to do everything with Tech. social media and tech. I और do the tech. first thing अगर मैंने किसी को देखा है ना, it's that someone cannot fix their own Wi-Fi. ये तो थोड़ा 15 minutes. ज़्यादा I won. No, for real, he cannot connect his own Wi-Fi. अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Yeah, enough about क्यूआर him. कोड दे देंगे। Okay. So quickly, I want to understand कि you guys are traders. I'm sure you have a chill life but stressful life. So what is your daily routine like? मतलब क्या करते हो सबसे पहले सुबह उठ के? We'll start with Yash. जब मेरा सुबह थोड़ा सा लेट ही होता है, मतलब मैं सुबह उठने की भी जल्दी नहीं करता। मेरे को लगता है कि मेरी नींद पूरी होगी, मतलब आई स्लीप 8 to 9 आवर्स अ डे। आई डोंट, मतलब मैं उसमें बिलीव नहीं रखता। जब स्ट्रगलिंग डेज से आई यूज्ड टू स्लीप 4-5 आवर्स 6 आवर्स उस टाइम पे था। बट नाउ आई बिलीव आई नीड अ स्लीप ऑफ 8-9 आवर्स कि मैं फ्रेश उठूँ और फिर मैं पूरा दिन, मतलब मेरे को चिड़चिड़ा बनना रहा है। मैं नींद पूरी नहीं होगी तो मैं चिड़ा रहूँगा, कभी किसी से इरिटेटेड रहूँगा, किसी से। तो जनरली मतलब मैं 9 या 10 बजे के बीच में उठता हूँ। देन आई गो टू, आजकल आई एम गोइंग टू जिम। फिर ऑफिस में थोड़ा बहुत ऑफिस की कॉल्स वॉल्स काम वाम निपटा के शाम को मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो ट्रेडिंग में एक रूटीन बनाने के लिए तो कभी कभी आई कम लाइव ऑन यूट्यूब कि मेरा रूटीन रहे कि मैं रोज़ ट्रेडिंग करूँगी। कि अगर मैं मतलब वो रूटीन नहीं बनाऊंगा तो मैं हो सकता है ट्रेडिंग किसी किसी दिन स्किप कर देता हूँ, ऐसे ही 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा। बट काफ़ी अब काफ़ी रिलैक्सिंग डे होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे होता है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए वैसे भी आपका माइंड जो है वो पूरा रिलैक्स्ड होना चाहिए। कोई भी प्रेशर है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। एंड देन आई कम होम, टाइम पास होता है, कोई ना कोई किसी से बात कर ली, घूम फिर लिए, खाना वाना खाया। रोज आई वॉच एटलीस्ट 2-3 लोगों एपिसोड्स का कोई ना। मजाक उड़ा लिया. हाँ तुम तो कोई भी सीरीज तो चल ही रही होती है। तो
मतलब 2-3 एपिसोड 4-5 एपिसोड मिनिमम देखने वाला 2-3 घंटे में सीरीज देखूंगा उसके बाद है ना इसलिए तो काफी नॉर्मल डे होता है ऐसा नहीं है कि बहुत हेक्टिक डे नहीं होता एंड इट इज अ वेरी नॉर्मल डे What about you? हाँ, हेक्टिक होता था मतलब पहले, बट आजकल तो वैसा ही है, रिलैक्सेशन ज़्यादा चाहिए और उतना ज़्यादा हो भी नहीं पाता। बट हाँ, वही सुबह उठ के 9 बजे के आसपास उठना, फिर जिम वगैरह घंटा 1.5 घंटा, फिर घर आए फ्रेश व्रेश होके आराम से नहाना धोना करके 1:30 बजे तक ऑफिस, 4-5 बजे तक नॉर्मल रहता है यहाँ, ठीक है वही काम वाम वाली चीज़। 1:30 बजे तक ऑफिस किसी स्मूथली बोला मैं 7 बजे तक ऑफिस पहुंच जाता हूँ सुबह नहीं 7 बजे तो वही 1:30 सुबह बजे तुमने यार। तुमने उस कॉन्फिडेंस से 1:30 बजे वाली मतलब लाइन बोली यार, बेचारे लोग वो अपना 1:30 रूटीन है बजे तो वो तो अपने लिए तो नॉर्मल हो गया, हाँ 1:30 लोगों बजे के लिए लोग 1:30 लंच बजे, वंच करते हैं भाई। अरे वो नॉर्मल लोगों के लिए ना, अपन रोज जिंदगी वैसी हो गई है, तो क्या, तो अपन थोड़ा 9 to 5 वाले में नहीं हो सकते भाई, सिंपल है, नींद भी पूरी करनी है, सिंपल वही बात बोली, 8-9 घंटे, अब 8-9 घंटे बिना काम नहीं होता। वो कल रात को भी देखा आप लोगों ने, नहीं उठ पाते भाई टाइम पे और नहीं सो पाते फिर। भाई ये दोनों सबसे बड़े मूड स्पॉइलर है हम कभी भी बाहर जाएंगे हम 4 लोग बाहर गए हैं कौन दोनों की बात कर रहे हो? ये तो तुम तो भाई कहाँ हम तुम तो दोनों को मूड नींद बनाने चाहिए वाले होती बंदा है ये मूड बनाने वाला बंदा है ये मैं कल रात को नहीं सोया और ये हमें गिल्ट में डाल देता है मैं सुबह 7 मैं बजे तो सुबह उठता 7 बजे उठ जाता हूँ। तुम उठ के दिखाओ तुम उठो फिर उसके बाद रात को उठ के दिखाना मतलब प्रसाद सबसे नहीं, ये- नीचे लेट आया आज बाय द वे। नहीं ये ये इसकी बात कर रहा है। बस ये उठता लेट है ना, इसका सिस्टम ये ये- उठता लेट जल्दी है। सो जाता ये है। 7 बजे उठ जाते हैं। हाँ हम लोग गए थे अबू धाबी F1 के लिए, हम्म। इसको मैं बोला कि चलो इतना बढ़िया इवेंट है, ये साला सो जाता था रात को। मैं बोल रहा यार यहाँ पे पार्टी है, वहाँ चलते यहाँ चलते, नहीं यार मुझे नींद आ रही है। मतलब इतने अच्छे पार्टी हम लोगों ने I मिस किया think वहाँ he's जाके। like me. वो एक स्केड्यूल बन जाता है यार, फिर इसके- नहीं आप नहीं कर सकता। इसका क्या है कि उसके बाद आप इसको ले जाओ हम्म। ये सबके बीच में सो जाएगा हाँ कितना भी कुछ। 10 कितना लोग बैठे बैठे? होंगे उनके बीच No, में सो I'm with जाएगा you. I'm on the same page. आई बिलीव कि यार अर्ली स्टेज में whenever you try to fit in at a place ना, वो एक स्पेस होती है जब आप खुद को बहुत पुश करते हो बिकॉज यू वांट टू बी, आपको दिखना है या आप लोगों के वजह, हाँ लोगों के लिए एडजस्ट करना है। बट देन व्हेन यू क्रिएट योर ओन स्पेस, तो आई बिलीव फॉर मी कंफर्ट इज एवरीथिंग। अगर इफ आई इट्स लाइक कि अगर मुझे 10 बजे नींद आ रही है, इट्स फाइन, आई वेक अप अर्ली। मैं अकेले गया आज सुबह, हैड अ ब्रेकफास्ट, गुड ब्रेकफास्ट, हैड अ कॉफी, मैं आया, आई टुक माई सेशन, मेरा रूटीन चल रहा है। बट आई एम एट अ स्टेज कि आई डोंट वांट टू पुश फॉर एनीबॉडी गाइस। मतलब ठीक है किसी को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, बट आई कैन नॉट पुश फॉर एनीथिंग। मतलब बुरा तो लग ही रहा है ना। नहीं अब हमें तो एडजस्टमेंट है हमने क्या करना तो गाली देनी है इसने हमें गिल्ट में डालना है तुम लेट उठते हो तुम लेट सोते हो मेरा जल्दी पार्टी तो ऐसे चलती रहती है, ऐसे तो नहीं है। मतलब और बस वहाँ बैठ के इट्स गुड ना कि अभी नाउ यू आर एट अ स्पेस कि यू कैन चूज योर ओन स्पेस। पहले लगता था ना कि रात को नहीं बैठेंगे तो कन्वर्सेशन मिस हो ठीक है, मतलब मैं जाएगी। मेरा देखूंगा Yeah. पहुंच जाए बाकी सब। नहीं यार ऐसे नहीं। बट जितनी होनी चाहिए honestly उतनी कहा, बातें हो हमारे जाती ends पे है। ऐसा नहीं है अगर इसको कुछ करना है तो तू कर अपने हिसाब से ऐसा हाँ, नहीं like you ऐसे नहीं कि हम मुंह उठा के बैठ जाएंगे भाई यश तो चला गया नहीं I वैसे think that's how it यार वो should पता be. है कि नॉर्मल जितना टाइम स्पेंड करना था साथ में लगभग कर चुके हैं, पीछे नहीं पहले क्या होता है यूजुअली, मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ स्टोरी, यू फील लाइक यू विल मिस समथिंग कि जब मैं नहीं रहूंगा तो आई विल लूज डोंट यू थिंक अपॉर्चुनिटी। दैट इज आल्सो डिपेंड ऑन द एज? मतलब जैसे जैसे अपना एज बढ़ते जा रहा है, वो जो ऐसे एक्साइटमेंट होता है वो कम होते ही जाता है वैसे। नहीं इसकी एक्साइटमेंट कम नहीं है ना एक्साइटमेंट सुबह रहती है, ज्यादा है सुबह रहती है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट इसकी हमसे भी ज्यादा है बट इसकी एक्साइटमेंट का टाइम सही नहीं है डल होती है। डल हो जाती है। बट वो मेरा एक, मैंने ये चीज नोटिस की कि आई हैव बीन डिजाइंड लाइक दिस, बट सोसाइटी बहुत अलग फंक्शन करती है। That's मतलब एवरीबॉडी वेक्स अप लेट, उनका मतलब जो मेरे फ्रेंड्स में भी संडे ब्रेकफास्ट का होता है, ये लोगों का ब्रेकफास्ट टाइम है 11:30-12 बजे, तब तक मेरा लंच का टाइम हो जाता है। आई वेक अप अर्ली, तो मैं बहुत बार वो मिस कर देता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबॉडी फंक्शंस एट दैट टाइम। मतलब ऑलमोस्ट ये लोग जो टाइम पे भी कर रहे हैं, आई गेस अभी मोस्टली लोग वैसे कर रहे हैं, बट आई थिंक आई एम ओल्ड स्कूल और मेरी वो बहुत साल से रूटीन है, वो ब्रेक It's भी नहीं हो working रहा for है। you. हाँ, आई एम फाइन विद इट। आप ट्रेड भी तो इसलिए सुबह वाला सेशन पे करते हो ना। मेरा बहुत सिंपल है रूटीन। What about you, प्रसाद? आपसे थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछती हूँ। ये लो, हाँ पूछो did I cut you off? नो नो ठीक है, थोड़ा अलग है भाई, इन लोगों ने बोर कर दिया। It's okay. But I'll, since you wanted to become a DJ, so I'm assuming you should have cooler answers. तो tell me quickly 3 things जो आप रोज खा सकते हो रोज खा without fail. विदाउट फेल दाल खिचड़ी एंड बिरयानी। 3 things. दाल दाल खिचड़ी, खिचड़ी। बिरयानी और दूसरा होता है काला रस्सा, मतलब जो हमारा महाराष्ट्रियन फूड होता है, इट्स वेरी स्पाइसी, दिस आई कैन ईट एनी टाइम, विच आई मिस एवरीवेयर। मतलब कहीं भी मैं बाहर वगैरह जाके आता हूँ, कुछ कंट्रीज में 10-15 दिन गया तो आते ही सबसे पहले मैं जाता हूँ कि कुछ तो ये खा के आ जाए।
just to have that taste and that spicy thing to it. Desi from within. Yes, मतलब I like that spicy food. Okay, So that is what it is. cool. तो अभी moving on to the तो last क्या part of एक ही our- क्वेश्चन तो एक ही बंदे से पूछना था ये? हाँ, ये अभी मुझे सबसे नहीं पूछना। क्यों? वही I यही can क्वेश्चन answer मुझे yours. I Yeah. can answer his. मेरा क्या है? Butter chicken, पोहा ऑब्वियस है अपना वाला मतलब पोहा वो, नहीं, क्योंकि आपको दूध white में sauce जहाँ pasta, and third for him would be Asian. हम्म, आई लाइक एशियन बुदल का मैं बताती हूँ। नहीं एशियन Japanese. नहीं है वो जापानीज है जो Ramen. ब्रेकफास्ट हाँ, English breakfast हाँ pattern. इंग्लिश ब्रेकफास्ट मतलब मेरा भी इतना मन कर रहा है हम यहाँ पे आए हुए हैं कि मैं खाऊं जाके मैं आज ही खा के आया मैंने भी बिकॉज आई वेक अप अर्ली गाइस बुदल का बताती हूँ। दाल दाल रोटी सब्जी चावल प्रॉपरली बिरयानी। अरे पनीर ये बिरयानी। दोनों इतने बोरिंग बंदे हैं ना खाने में ये एक्साइटिंग है खाने में चलो ये सब कुछ खाएगा ये दोनों के साथ क्या है कि हम बाहर गए अभी थाईलैंड गए हम तीनों से तो इसने धोखा दे दिया था एंड क्या टाइम ही पे टेस्टी हुए थे। हाँ एंड टाइम पे एयरपोर्ट पे आके तो हम थाईलैंड पहुंचे पहले दिन इन्होंने बोला चलो इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं हम चले थे खाया इंडियन अगले दिन सुबह हम सेम रेस्टोरेंट में सेम खाना खा के आए फिर अगले दिन उसी दिन शाम को हम सेम रेस्टोरेंट में सेम खाना खा के आए तीनों टाइम मतलब जिस दिन रात को पहुंचे उस दिन रात को फिर दोपहर आपके में साथ शाम तो को फिर भी अच्छा हुआ हम गए बाली। ठीक है, बाली में दे फाउंड सम इंडियन रेस्टोरेंट और वहां पे हमने मतलब आजू बाजू 2-3 रेस्टोरेंट थे लग के 4 दिन कंटिन्यूसली जब तक हम साउथ ऑफ बाली में ये थे। होता है वही है ना यार दाल मतलब ये वो खाने के बाद ऐसा है कि यार फिर इंडियन ही चावल चाहिए रोटी सब्जी काजू मसाला। अरे तो But यार- इंडियन चाहिए इंडियन भी अलग रेस्टोरेंट से खा लो उधर जाएंगे नहीं आई लाइक ट्राइंग फूड फ्रॉम सेम चीज ऑर्डर करेंगे सेम आई हैव रेस्टोरेंट नो प्रॉब्लम अरे हो सकता है वो खराब एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हो मेरा अलग अलग अच्छे नहीं मिलते हैं हाँ यार। वही भी एक दिक्कत बहुत है। मुश्किल से एक एक मिलता तरफ है जाके नेक्स्ट खा लेना वीक ऐसा लगता है भाई उधर ही जाके खा नहीं ले मेरे भी try कुछ करो। दोस्त है दे वुड प्रेफर इंडियन फूड एंड देयर लाइक फूड कि खाओ जो पसंद है वो रेस्टोरेंट में चल लो कम से कम मेरा ऐसा है कि मैं जिस भी बोलो कंट्री taste में जाऊंगा match हो फिर। आई वुड लाइक टू हैव अ टेस्ट तो उनका वही टेस्ट वाली बात की No, वाला no, नोट करा ऐसे हो मेरे गया को उसकी लगता है है तो खाना अगर आप 5 दिन ट्रिप पे हो तो 5 दिन में आप 3 बार तो 2 बार खाओगे चलो मैंने दैट्स 10 टाइम्स तो हम 10 बार एक खाना बुदल खा सकते हैं। घर पे होते हैं तो तुम्हारी मम्मी अलग अलग रोज कुजीन बनाती है। अरे नहीं दाल तो अलग बना लेती है कम से कम पीली दाल काली दाल तुम एक ही जगह पे जाके दाल खिचड़ी पीली दाल तो दाल पनीर नहीं खाएंगे किसी दिन आमरस मंगवा लेंगे अगर देगा सामने वाला बट क्या करे भाई नहीं होता उधर ठीक है जस्ट वेजिटेरियन थिंग्स वेजिटेरियन वही वेजिटेरियन थिंग्स वो आई थिंक बहुत ओनली all three of Veg. non-vegetarian budal se vegetarian hai so yeah he does not have a lot of options बैकवर्ड है ना थोड़ा he just told you guys that if you would not have been a trader so you would have been द सन्यासी the sannyasi budal baba बाबा भाई बाबा बहुत सा स्कोप है भाई ये ट्रेडिंग वेडिंग में नहीं स्कोप कट, तो कट, है कट। दर का धंधा दर का धंधा नहीं डर नहीं से okay तो अभी पैसे तो आप लोगों ने बहुत कमा लिए 15 मिनट हो गए हैं ना आई वांट ठीक आई है। वांट वेरी क्विकली ये बहुत ज्यादा क्विक क्वेश्चन है पैसा आप लोगों ने बहुत कमा लिए एंड आई एम श्योर आई नो दैट बुधिल तो इज शॉपोहॉलिक आई वुड नॉट यूज द वर्ड शॉपोहॉलिक फॉर हिम ही विल बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट ही सी मतलब जस्ट रैंडम ही विल जस्ट ड्राइव अ कार ये अच्छी है ये ले लेता है लैपटॉप ये अच्छा है ये ले लेता है तो ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन मैं इन दोनों के साथ ज्यादा रही हूँ तो आप लोग का मुझे उतना ये पता भी नहीं। ऐसा ही है इनका ये तो ये जिद्दी है ये जिद्दी है अब क्या है कि इसकी किस्मत ऐसी है कि इसके आसपास इसको रोकने वाले लोग हैं अभी इसको कुछ पसंद आएगा तो इसको वो चाहिए ना तो इसको ये हो जाएगा कि मेरे को अभी के अभी चाहिए मतलब मेरे को अभी ही चाहिए अब इसको मैं बोलूंगा कि तू अगर कल तू सेम फील कर रहा होगा तो तू कल ले लियो मगर इसको चाहिए मैंने अभी मेरे मुंह से निकल गया अगर तो उसके बाहर आके ऐसे राउंड मार के आएंगे ना पूरे राउंड मारने तक वही चलते रहेगा अरे वो अच्छा है वो लेना चाहिए था हाँ बट ही इज डेफिनेटली टेकी गाय मतलब कुछ भी टेक में ले लेगा भले वो काम का हो ना हो पसंद आए तो ले लेगा वो। इसके बाद हम में से जैसे हम सारे वीडियो शूट करते हैं सबसे ज्यादा इसके पास जैसे हो मतलब मैं तो ऐसे थोड़ा बहुत सोच के ही लेता हूँ कुछ लेना हो तो भी अगर काम का ही तो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ बट बाकी चीजें तो पसंद आ गए तो फिर छोड़ता नहीं हूँ So what is This the was one. most expensive thing that you guys own? No properties, no cars, वॉचेस आई थिंक वॉचेस watches. Okay. And which one is it? आई हैव रिसेंटली बॉट अ रोलेक्स Okay. दैट वाज ऑलमोस्ट 18 lakhs के आसपास था पहन रखी है ऐसे ऐसे करके मतलब बोल दो ये पहन रिसेंटली रखी बॉट Cool. What about you? मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग आई लाइक गोल्ड Gold. आई बाय अ लॉट ऑफ गोल्ड
ये Other वैसे than calculate करो तो investments. गोल्ड ही सबका निकला, गोल्ड भी माइनस करो, गोल्ड के अलावा अदर देन इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। कुछ है नहीं वैसे महंगा। इसके कैमरा सेटअप्स वगैरह यही सब चीजें होंगी, ये कुछ भी खरीदता हाँ है ठीक है, that's a part of. शूज होंगे बहुत सारे। हाँ शूज इसकी में भी वो इन्वेस्टमेंट। What about you, मेरा guys? भी भाई जूते मेरे पास और कपड़े वो महंगे होंगे मेरे पास, बाकी तो कुछ नहीं इतना। हाँ मतलब ऐसा कोई ऐसा प्राइस ज्वेलरी के लिए पोजीशन मतलब मतलब कुछ जैसे नहीं। ये मैंने डायमंड का ले लिया, या मतलब अब जैसे ये सब हटाना है बट इनको इंक्लूड ना करें नहीं, तो you can लाइक include that. हाँ It's तो okay. That's a जैसे variable. मुझे ऐसे इन सब सबसे बीटीसी बनाओ ना। हाँ ये बिटकॉइन का रिंग है तो ये सब चीज़ें ठीक है अलग है, बट मेरे को मेन शौक ये है कि मैं जूते ले लेता हूँ, यहाँ चलो 1.5 लाख का दिखा अच्छा लगा तो मेरे को मंगवाना है, तो मेरा मन हो गया तो मेरे को लेना है। घड़ी का मेरे को अभी तक शौक बैग्स चढ़ा बैग्स नहीं है। गाइस बैग्स, हाँ। हम सबके पास महंगे बैग्स हैं। हाँ बैग्स का चलो है, बैग्स वो घड़ी जितने महंगा नहीं है ना। हाँ घड़ी जितना तो नहीं तो होगा। वैसे तो महंगी है यार, वैसे देखा तो। What about you? घड़ियां ही है मेरे पास भी ऐसे। Watches. इवन आई एम फाउंड ऑफ वॉचेस, मतलब पहले इट वाज ऑल, मैं जब भी पैसा कमाता आपको लगता है कि एसेट एसेट एसेट, एक बार आप वो एक लेवल हो जाते हो फिर आपको लगता है हो गया ना यार, अभी थोड़ा अभी जो अपना मन था पहले से ही वो करना जरूरी है। बट ऐसा नहीं है कि मेरे को तो ऐसा है कि घड़ी मेरे को महंगी का शौक नहीं है, मतलब आई हैव रोलेक्स, और मेरे को है कि दिखने में अच्छी हो, हाँ, चाहे वो same. 5,000 रुपए की हो। एग्जैक्टली। तो मेरे पास एक वो पता नहीं कोई क्रोकोडाइल करके किसी पे बना हुआ था, वो ग्रीन कलर की घड़ी थी, मतलब वो एक होता है ना जैसे लेकॉस्ट से की, तो वो भी मैंने ले ली, तो मैं वो भी पहन लेता हूँ। Even that blue watch of yours. इट इज ऑल वो अबाउट, आई महंगी थिंक है। इट इज ऑल अबाउट दोज तो दोज वो ओल्ड सीधी बात ड्रीम्स। है, it's an expensive watch. मुझे लगता है इट इज ऑल अबाउट दोज ओल्ड ड्रीम्स। अभी रोलेक्स में फिर से नहीं लूंगा अभी, बिकॉज इट वाज एक शौक था, ले लिया, अभी फिर से मैं थोड़ी यार 20-30 लाख डाल के कोई वॉच लूंगा। बट यार एटलीस्ट अब हम सब लोग वो चीज कर सकते हैं मैं कोई जहाँ और ले लूंगा, जहाँ मन अलग से नहीं है, लूंगा। ज्यादा उस पर नहीं फोकस करते। एग्जैक्टली। Right. So, moving on to the last question of this ये तूने इससे conversation. पहले बोला था। That was the last part. So 50-50, 50% we covered, and this is the last question. So last question मेरा ये, you guys are very successful, doing very well for yourselves and your family. You own expensive things. मेरे को पता है क्वेश्चन के एंड एक ही हो सकती है कि जब ऐसा क्वेश्चन बिल्डअप होता है ना, तुम्हारा लाइफ में सबसे बड़ा डर क्या है? So not exactly डर, but what is that one thing? So आप लोग सब शायद एक तरीके से सोचते होगे. What is that one thing that still makes you feel insecure, या फिर और डर कह लो एक तरीके से, जो अभी भी, या फिर आप जिस चीज को लेके अभी भी ओवर थिंक करते हो? मेरे लिए लाइफस्टाइल है, लाइक द वे वी लिव राइट नाउ। आई थिंक मेरा बहुत सून आई एम गोना चेंज इट सून। जैसे मुझे लगता है ना, अभी मेरे को लग रहा है इट्स टू मच ना, अब इतना सब कुछ कर ले, ये कभी सामने आगे काम तो आए। मेरा एक वो डर होता है रेगुलरली, इसलिए मैं बहुत चेकअप्स रेगुलरली भी करते रहता हूँ, सब सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो वो एक डर मुझे है कंपैरेटिवली अगर देखा हेल्थ को लेके. हेल्थ को लेकर। नहीं, डर कुछ नहीं है, जस्ट वांट माय फैमिली एंड नियर एंड डियर वंस क्लोज टू मी। एक्चुअली हम बस मेरे लिए वही मैटर करता है। वैसे प्रोफेशन में है ना, पैसा वैसा सब ठीक है। ट्रेडिंग इज समथिंग जो कि स्किल है। देखो, यू बिल्ड अ बिजनेस, सपोज यू हैव अ प्रोडक्ट और सर्विस टू ऑफर एंड यू बिल्ड अ बिजनेस, और वो फेल हो जाता है तो आपको एक बिजनेस बनाने में वापस टाइम लगेगा, कैपिटल लगेगा, सब कुछ लगेगा। ट्रेडिंग क्या एक स्किल है, तो जो भी एक अच्छा ट्रेडर होगा ना, उसको कभी ये डर नहीं होगा कि मेरा पैसा चला जाएगा तो मैं क्या करूँ, क्योंकि उसने एक स्किल डेवलप कर रखा है। वो कहीं से वापस थोड़ा सा भी पैसा इकट्ठा कर लेगा ना, तो उससे वो वापस ग्रो कर जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है सिर्फ हम नहीं, कोई भी ऐसा जो इस इंडस्ट्री में होगा, उसका मेन डर यही होगा कि हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज, व्हाट ऑल वी हैव गिवन टू द फैमिली, एंड जो अपना हम ये सारी चीज़ें मेंटेन रहे, क्योंकि ट्रेडर के मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा वो Important. बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब नहीं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई बिलीव कि जो फाइनेंशियल डर है वो हम सब एलिमिनेट कर लेते हैं, है ना? That is मतलब आई eliminated थिंक from your डोंट यू life. थिंक दैट हैपेंस आफ्टर सर्टेन अमाउंट? एक अमाउंट होने के बाद आपको फाइनेंशियल डर निकल जाता है। अरे वैसा नहीं है, यू हैव क्रिएटेड योर लाइफस्टाइल टू एन एक्सटेंट विच इज नॉट नीडेड। मतलब 18 लाख की नई भी घड़ी पहनेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। पर दाल चावल सब्जी रोटी का अरेंजमेंट हमने कर लिया है। मतलब So आई the डोंट, rest of your life, मतलब वी ऑल कैन रिटायर राइट अवे राइट नाउ विदाउट इवन Exactly. थिंकिंग एनीथिंग, बिकॉज इतना रेंट तो सबको आएगा ही। मतलब रेंट हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, एफडीज हो, कुछ तो होगा ही ना। आई डोंट थिंक ये फाइनेंशियल डर वो नहीं है। दैट इज अ रियल डर, दैट इज द लास्ट थिंग। हम बोलते हैं हमारी लाइफस्टाइल नहीं रहेगी तो क्या होगा, या मैं छोटी गाड़ी, इट डजेंट मैटर इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में क्या मैटर करता है कि मुझे तो आपके 4 लोग हैं, सिर्फ सिंपल 4 भाई लोग हैं अपनी आपके फैमिली है, पास, बस उसमें कहीं पर भी कोई उसमें gaps ना कुछ नहीं create होना हो। चाहिए यार। हम पैसा क्यों कमा रहे भाई? फैमिली के लिए, उसमें सब कुछ स्मूथ रहना चाहिए। हम्म। मम्मी उससे खुश, पापा अपने से खुश, बहनें अपने में खुश। ये फैमिली का बॉन्ड अगर हल्का फुल्का भी ऊपर नीचे होता है ना, तो लगता है साला बहनचोद कमा किसके लिए रहे हैं। मेरे को लगता है कि वो एक लाइफ थोड़ा सा का मुझे डर है। सर्कल बहुत सिंपल है। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले कमाने वाले बंदे हो, यू बाय लाइफ इंश्योरेंस, दैट्स इट। ठीक है, बहुत बहुत सस्ता होता है यार।
आप मैंने कहा 1,000-2,000 रुपए दोगे, आप 1-2 करोड़ से सिक्योर हो गए, उसमें घर चल जाता नो है। वन टॉक्स अबाउट इट एक्चुअली, पता है नहीं, क्या? दैट इज वेरी सिंपल, मतलब बहुत exactly, वो सिंपल, बोले- लेते सर्कल नहीं बहुत है सिंपल मैं एक्चुअली। है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ। मेरे को सच में ये सोचता हूँ साला टाइम ही नहीं मिल रहा लेने का, लेकिन एक्चुअल में लेना मैं चाहिए। हर साल और बता हर जैसे साल ही- टॉप अप करना पड़ता है हर उसको। साल में जैसे मैं IT रिटर्न भरता हूँ, सबसे पहला टॉप काम अप मेरा कर, यही होता है हाँ। कि भाई इसको बढ़ाओ। पता है क्यों सबसे टॉप अप किया जाता है? उससे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहीं नहीं मिलता है, सही में। नहीं, टॉप अप क्यों और करते हैं सबसे हम लोग? बड़ा डर भी ये है, जो अटैक आ रहे हैं आजकल साइलेंट वाले, मुझे तो Exactly. उसका बड़ा डर है भाई आप सोचो ना, वी आर वो सो अचानक यंग, से ना I'll tell you फंसा हुआ इतने यंग में इतना IT किसी का होता भी नहीं है, और कितना इंटू 25x तक आपको मिलता है। नहीं, देखो देखो, बहुत सिंपल है। क्रिएट योर लाइबिलिटीज, यू बैक इट अप बाय योर लाइफ इंश्योरेंस, एकदम सिंपल। एग्जैक्टली। वो एक चीज हो गई, और उसको टॉप अप करना है। ऐसा नहीं कि अपने 5 साल पहले 1 करोड़ में कुछ नहीं होता, हाँ, बिकॉज यू आर गिवन अ लाइफ स्टाइल टू योर फैमिली। क्योंकि जब आप जाओगे यू विल लीव लाइबिलिटीज, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइबिलिटीज नहीं होगी, तो यू कीप ऑन टॉपिंग इट। वो बहुत सिंपल है। सर्कल दूसरा क्या कंप्लीट होना है कि आज मेरे पास पैसा है। बोल, आपको सबसे ज्यादा एडवाइस क्या मिली होगी लाइफ में कि जिंदगी और पैसा नहीं आएगा, अभी आ रहा है तो सेव कर ले, ये वो। इसका सर्कल बहुत सिंपल है। यू नीड अ स्पेसिफिक अमाउंट टू लिव अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल। आप वो नंबर फाइंड आउट कर लो, 2-5 लाख 10 लाख रुपए होगा। ट्राई टू क्रिएट अ पैसिव इनकम फॉर दैट। द डे यू डू दैट, आप मेंटली रिलीव हो। उसके बाद आप थोड़ा स्पेस लेते हो, जो मेरे साथ हुआ। मैंने, ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा डर था, मैंने उसको सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब मुझे पता है कि आई कैन easily retire any day and I would not have to be worrying about anything। दाल चावल सब्जी रोटी का प्रॉब्लम नहीं है, घर गाड़ी ये वो सब। अब दिक्कत क्या है, उसके बाद आप लेते हो ब्रेक। क्योंकि जब आपकी चीजें कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद फिर आप ब्रेक लेते हो। देन यू नीड अ रीजन। मतलब अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरा एक सवाल मैं सबसे पूछता हूँ आजकल, दिस इज द न्यू थिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब मैं उस दिन डॉक्टर साहब के गया, ही इज 25 years एक्सपीरियंस। अब पैसा तुम सोच लो, उसके लिए कुछ वर्ड होगा पैसा, ही हैज मेड इनफ। तो मुझे लगता है कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट मेरा जो क्वेश्चन है विच आई आस्क टू एवरीबॉडी इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। देखो, आपने पूरे क्वेश्चंस पूछे, बट दिस इज समथिंग व्हाट आई वांट टू ऐड इन दिस कॉन्वर्सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, लोगों को सब ये बताते हैं कि सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है। वो हो गए, पैसा कमा लिया। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे मेरा क्वेश्चन है कि नैन्सी, व्हाट कीप्स यू गोइंग। देखो, आपने यू हैव मेड डिसेंट मनी, है ना, उसके बाद आपने अपनी एसेट्स भी क्रिएट किए होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, एक ही चीज रोज आने वाले 20 साल तक करना है, तो उसका मोटिवेशन क्या है? व्हाट कीप्स यू गोइंग? इट्स ऑल्सो पैशन, राइट? लाइक अगर पैशन हो ही नहीं तो आप कैसे आप एक ही चीज बार बार पैशन किस बात का? पैसे मैं कमाने तो का? सच पैसे बता रहा कमाने हूँ, का। इतना कमाने के बाद भी हमेशा परिवार की मुझे तो चिंता रहती है। और मुझे ऐसा है पैसा भाई, यार मेरी सबको मम्मी को होगा। कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं चाहे कोई भी सपना हो, मैं हमेशा उसे लेकर आगे सोचता हूँ, हाँ, इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, उसके लिए ये करना आई पड़ेगा। थिंक इस चीज का कोई मेरे आंसर लिए तो नहीं है, सिर्फ ये है, बाकी क्योंकि कुछ आप ऐसा लाइफ आंसर में नहीं हो सकता। सेटिस्फाई कब होगे? व्हाट इज दैट लिमिट वो कभी नहीं हो सकते। नहीं, आप नहीं, आज 100 it's करोड़ not- it's सोच not रहे हो, about 100 being- होते हैं कि तो भी आप सोचोगे इट्स 110 नॉट हो। अबाउट बीइंग सेटिस्फाइड। मैं भी ऐसे नंबर्स की बात स्टार्टिंग ही में नहीं कर सोचता था रहा कि हूँ। यार महीने का 1.5-2 लाख कमाऊं तो काफी ऐसा लगता था, है ना? मतलब मैंने आज इतना साला उसका 50 गुना लाइक भी आए तो भी एक टाइम था जहाँ पे अनसेटिस्फाइड। मैं सोचता था कि यही लाइक 7-8 years बैक की अगर बात करें, मैं सोचता था कि लोग 50 लाख की गाड़ी कैसे लेते हैं, मैं भी सोचता था भाई। यू नो, लाइक लिटरली मैं सोचता था 50 लाख की गाड़ी हो कमाता कितना होगा ऐसा ना, ऐसा लगता था। एंड नाउ नहीं, अभी नाउ वी आर बाइंग लाइक 50-80 lakhs 1-1 करोड़ की गाड़ी जस्ट लाइक दैट। बट वी कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, मुझे लगता है। बट एक जो होता है ना, जो स्ट्रेस होता है, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपका स्ट्रेस निकल जाता है, देन यू आर वर्किंग ओनली फॉर यू। मतलब अभी ये मेरे मेरे मन पे है, मेरे को कहीं भी जाना है मैं जाऊंगा, मेरे को नहीं करना है मैं नहीं करूंगा। इट डिपेंड्स ऑन अस। बट बट स्टिल, मोटिवेशन नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं मोटिवेशन स्टिल, तो बट कुछ कंटिन्यूशन तो रहता ही है। होगा। हाँ, व्हाट कीप्स यू गोइंग? फ्रीडम क्या, अगर आपने काम करना बंद कर दिया, देखो वो जो आज लाइफस्टाइल हुआ क्या नहीं मेंटेन। देखो हमेशा क्या है कि वो कंडीशनल लाइफस्टाइल होता है। आप ये कर रहे हो तो आपको ये मिलेगा। तो अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास फ्रीडम है। तुम कल घर में बैठ जाओगे, तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तो आज तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे पास एक रेगुलर इनकम आ रही है, तुम्हारे पास इंडिपेंडेंस है। तुम आज उठे, तुमने बोला कि मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम जा सकते हो। बट आई थिंक पीपल हु आर वेरी पैशनेट, राइट, या फिर ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप होता है उनके अंदर। मैं इसलिए आई ऑलवेज आस्क पीपल, आर एंटरप्रेन्योर born आर मेड? कोई भी बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर, आर दे मेड और born? I'll answer this. They're या born. टेल मी। दे born, एग्जैक्टली मैं ये बोल रहा हूँ। अभी जैसे भी मैं भी, जब भी बहुत ऐसे ये होता है ना, मतलब इरिटेशन हो गया या बहुत काम हो गया, मैं 10 दिन भी ट्रिप पे जाऊंगा ना, मेरे को लगता है यार बहुत हो गया यार, अभी चल लेट्स गो बैक एंड वर्क। इट्स नॉट बिकॉज मेरे को पैसा कमाना नहीं है, बट वो एक अंदर से ऐसे फीलिंग आती है, क्या कर रहा हूँ यार 10 दिन से मैं, यू नो, दैट हैपेंस रेगुलरली। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस, राइट? इतना प्रिविलेज किसी के पास नहीं है। बट दिस इज अ प्रिविलेज दैट यू डू व्हाट यू लव, एग्जैक्टली। है ना? जैसे मुझे धंधा करना पसंद है, आई लव व्हाट आई डू। Hmm. बट अगर ये चीज आप मुझे 5 साल पहले पूछते, व्हेन आई वाज वर्किंग अंडर समबडी, दैट इज समथिंग आई नेवर लव्ड, है ना? मुझे घुटन होती थी। बट अब
बट स्टिल वो एक क्वेश्चन बहुत सही मतलब मेरे दिमाग में है ही कि रोज एक आपका ही जवाब काम. दो, आपका जवाब. अरे आई एम ट्राइंग टू फाइंड द आंसर. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पीपल्स माइंडसेट. घूम फिर के इसका आंसर एक ही चीज है, पीपल वर्क फॉर their family's happiness, for freedom, for money. So मनी it's a वो full आंसर ढूंढो unconditional. जब हाँ. तुम्हें मिलेगा तो We'll get तो back हम to सोचेंगे you. कि We'll हमारा have- क्या कॉपी हो पेस्ट सकता कर है. लेंगे. हाँ, we'll have अभी part अभी हम उस आंसर की तलाश में नहीं है. Well, everybody is at different stages of life, right? Yeah. मुझे ऐसा लगता है. So now, very quickly, Very quickly नहीं है. we've wrapped this up now. So thank you so much, guys, for this raw conversation, and definitely I found out so much more about two of you. इनको तो मैं काफी पहले से जानती हूँ, so I had an idea. But good conversation, very deep conversation. Thank you so much. डीजे से भी बात हुई है आज. DJ बात Benwish. रात को बात अभी अगले पार्टी में प्ले This होगा was, होगा. this was unexpected. अगले पार्टी में मैं अभी क्यों कर रहा आज तुमसे ब्लूटूथ से गाने चल तो रहे उससे डेस्क लगेगा ना. Do you have one? या So guys, Spotify पे with अच्छे बजा this, देना. we'll end the night. We'll end the conversation, and we'll wait for his DJ night. परफेक्ट. Thank you guys.